Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start a new topic in the series of structure and bonding chapter, which includes electromagnetic effect and your resonance effect. So we have uploaded one video in this particular series as of now that includes the topic and inductive effect. So if you have not checked that particular video, I request you to first go through the link that I have mentioned in the description box below and then switch to this part of the section of the chapter. Okay, so without wasting any more time, let's just discuss about electromagnetic effect and resonance effect. All right, so what is your electromagnetic effect? Now we are going to see that what it is all about and what kind of effect is your electromagnetic effect. So first of all, आपने अपने previous video में देखा था जब हमने inductive effect की बात की थी that it is a permanent effect, right? And on the contrary, on the other hand side, जो आपका electromagnetic effect है, that is not permanent effect. It is definitely going to be temporary effect. और ये कौन से compounds में operate करता है? Only double and triple bonded compounds, that is basically unsaturated compounds. That too only at the demand of your attacking reagent. Understood? You will eventually understand while seeing the examples. So electromagnetic effect क्या है? It is a temporary effect that could be operated in your unsaturated compounds only at the demand of your attacking reagent. ओके सो यहाँ पे क्या होगा देयर इज अकरिंग अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ योर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ऑफ योर मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स जैसे कि आप यहाँ केस देख सकते हो द केस ऑफ योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज योर प्लस ई इफेक्ट राइट अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्लस ई इफेक्ट क्या बोलता है बच्चा कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एटम में ट्रांसफर हो रहे हैं डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके देख लो यहाँ पे इस कार्बन में शिफ्ट हो गए तो ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा नाउ दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सो इट विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू सी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज अब आप बोलोगे क्यों आया बिकॉज इवेंचुअली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इस कार्बन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो गए ठीक है इसीलिए नाउ इट विल बी कैरिंग द नेगेटिव चार्ज विच इज व्हाई इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द प्रोटोन टुवर्ड्स इटसेल्फ अब प्रोटोन आपका इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा राइट तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोलता है दैट इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड like if these pi electron are transferred to the atom of double bond to which the attacking reagent gets finally attached यहाँ पे जो आपका attacking इलेक्ट्रोफाइल है ये आके यहाँ पे अटैच हो रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे इस कार्बन पे लग गए थे ये आप देख पा रहे हो विच इज वाई यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था अंडरस्टूड I hope it is quite understandable. If it is not, you can repeatedly listen to it. Positive electromagnetic effect क्या बोल रहा है? That if the pi electrons are transferred to that atom of the double bond to which your attacking reagent or attacking electrophile gets finally attached, the effect is called plus E effect. Okay, so that is the case of your addition of acid to alkenes. Okay, so example इसमें आपके पास जो आप देख रहे हो that is the addition of what acids to alkene या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स में ही होगा ये बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज गोइंग टू गेट ऑपरेटेड ऑन योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरस्टैंडेबल ठीक है And now another point is such complete transfer of electron of multiple bond to one of the bonded atom in the presence of an attacking reagent is called electromagnetic effect या फिर आप इसे simply E effect भी बोलते हो तो कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हमने इसमें कि ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है इट इज ऑपरेटेड इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देन इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ठीक है जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था तो किसी भी एक कार्बन पे वो पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस होगी नाउ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो आपने प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल देख लिया नाउ लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज योर माइनस सी इफेक्ट तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चे you can see the example over here of alkene that is C double bond C alkene present over here आपके पास इथीन का एग्जांपल लिया है इन्होंने CH2 double bond CH2 वहां पे आपके पास अब
पिछले केस में था अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आपके पास आ गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड anion is going to act as a attacking nucleophile। अब होगा क्या, सेम केस है, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस इस कार्बन के ऊपर होगी, which is making the previous carbon now what, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, which is why it is going to carry the positive charge। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके पास ऑलरेडी abundance of इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, it will go and get attached over the that carbon जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ठीक है, and it will result in the structure like this। I hope it is quite understandable to you. So this is your negative electromagnetic effect, जिसकी अगर आप definition लिखना चाहो तो लिख सकते हो that in this case your pi electrons are transferred to an atom of the doubly bonded other than the one to which attacking reagent gets finally attached। ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, पिछले केस में क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर हो रहा था उसी पे जाके, उसी वाले कार्बन एटम पे जाके आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर दे रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन आपका जिस कार्बन एटम के ऊपर जाएगा वहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट नहीं जाएगा, उसके दूसरे वाले कार्बन पे चला जाएगा। Right, so I hope that is quite understandable to you all। So that is all about electromagnetic effect। Now आपके पेपर में मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आपसे कोई भी बोर्ड हो, JNDU बी इट, JNDU बी इट योर पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके जो बैचलर्स के फाइनल एग्जाम होते हैं मोस्टली आपके वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इज ऑफ योर डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो डेफिनेटली अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, जस्ट गो ओवर देयर, check the link that I mentioned in the description box and yeah, make your notes as well। So then just switch to this part of the section। So talking about the differences, as I've already told you, inductive effect is permanent effect, electromagnetic on the other hand is temporary। The presence of multiple bond is not that essential in case of your inductive effect, but it should be there in the case of your electromagnetic effect, जैसे कि अभी हमने previous video में देख लिया है। Right, now the polarity of bond is the most case in case of your inductive effect। previous videos में हम ये already discuss कर चुके हैं। While the polarity of the bond is not that of an important use while we talking about the electromagnetic effect। Okay, then आपके पास जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, अगर देखो पोलैरिटी है तो चार्ज सेपरेशन भी होगी होगी, राइट, और ऐसा जो है पार्शियल चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, बट जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का केस है वहां पे कंप्लीट चार्ज सेपरेशन देखने को मिलती है आपको, पार्शियल नहीं। ओके, एंड इन केस ऑफ योर इंडक्टिव इफेक्ट आपके कोई आइंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको, बट इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दैट देयर आर सेवरल आइंस आर फॉर्म्ड। यू हैव सीन द एग्जांपल ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड अनाइंस आर फॉर्मिंग, राइट। सो आपके इंडक्टिव इफेक्ट में आपको अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट डेफिनेटली इट इज द केस इन दैट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आपको अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी वहां पे। देन कम्स योर इंडक्टिव इफेक्ट दैट डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, वो आपके पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एज सच लीव नहीं कर रहे हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा केस नहीं है। डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो डेफिनेटली आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लीव करेंगे एंड वो एक नई पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। आपके इंडक्टिव इफेक्ट में देयर इज ओनली अकरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट व्हाइल इन द केस ऑफ electromagnetic there is not just the displacement of electron, there is complete, you can say, more of or less or transference of electrons occurring over here। So I hope the differences are quite understandable to you, and some other differences are also there which you can hopefully, if you have Pradeep and Modern's book, you can check from that as well, right। So proceeding further to our next and the another most important topic of the series of structure and bonding, that is resonance। I hope most of you have studied, it is not like hoping that most of you have studied, you have actually studied that in your lower classes as well। तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेजोनेंस क्या है, बट इफ यू डोंट इवन नो अबाउट इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट राइट नाउ। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का मतलब क्या है। सो बेसिकली द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू अकर। ये कब होता है आपके पास, ये फिनोमिनन कब टेक प्लेस करता है, व्हेन you have for a molecule, if we say that we can write more than one or two Lewis structure, जिनके basically आपके पास differ कहाँ कर रहे हैं वो structure, in the positioning of their electrons, in the
position of their electrons. Over here in this structure you can see the electrons are arranged like this, but in the other case the electrons are arranged otherwise, right? So this is one thing. क्या हो रहा है यहाँ पे? You can see the phenomena of resonance is said to occur whenever for a molecule we can write two or more Lewis structure which differ in the position of electron and not in the relative position of atoms. उनके atoms में कोई change नहीं आ रहा, उनकी position में कोई change नहीं आ रहा, बस उसके electrons की position में change आ रहा है. That is all about your resonance. और इस तरह के structures को आप बोलते हो contributing structures, contributing, canonical, contributing structure, canonical structure or resonating structures. So I hope this much is quite clear to you. और जो इसका actual structure होता है किसी भी compound का, for example say we are taking the example of your benzene only, so इसका जो actual structure होगा it would be the average sum of these two resonating structures, right? So जो bond length है इस ring में the bond lengths in this particular ring, they are all identical. सारी की सारी bond lengths जो है they are all identical, and between those of your single and double bond ये सभी की सभी जो bond length है वो सब identical हैं. The only difference is in the case of the position of electrons. So that is how we can say that इस case में resonance है, because there is occurring the proper positioning or change of the electron from one position to another. Okay, यानी कि वो आपको आपके contributing structures दे रहे हैं, conjugation show कर रहे हैं, right? So this is again the example of benzene only. ये इसका एक Lewis structure है, ये second Lewis structure है जिसे हमने previous slide में देखा, और इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो होगा इसका बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर. दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. So I hope the term resonance is quite clear to you all. So let's just talk about resonance or mesomeric effect. Pardon me for my voice, it is not that good right now. I am having some sort of problem at my throat, so I hope you will bear it with me. So yeah, proceeding forward with the topic resonance or mesomeric effect. See what is happening over here. क्या है रेजोनेंस इफेक्ट है आपके पास? देयर इज बेसिकली अकरिंग द जनरेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स. ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन की बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, या फिर ऐसा ग्रुप लगा दो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो दिस लीड्स टू द इफेक्ट जिसको आप बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. द जनरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the conjugated system as a result of the phenomenon of resonance or mesomerism is called resonance effect, that is R effect और mesomeric और M effect. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपने लेट्स जस्ट से कि कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लिया, जैसे हम बेंजीन की बात कर लेते हैं, तो बेंजीन में आपने उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगाया जिसकी वजह से बेंजीन के पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक केस आ गया. और अगर आप मान लो कि आपने इस पे एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ग्रुप में डिक्रीज हो रही है, तो दिस लीड्स टू द इफेक्ट जिसको आप बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. फर्दर इसके दो टाइप्स हैं, माइनस आर और माइनस एम, और सेकेंड पार्ट है इसका प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. तो हम दोनों इफेक्ट को देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माइनस आर इफेक्ट. सी माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे दे विल बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड. तो ओवर हियर यू कैन सी दैट आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट ओवर हियर. तो ये आपका एग्जांपल है ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड, राइट? As from the name also you can estimate that aldehydic group is present and it is quite electron withdrawing in nature. So when this group is present adjacent to the double bond like this, सिंगल एंड डबल, सो अगर आपके पास ये जो ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा फ्रॉम देयर पाई बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ, और इस तरह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा डबल बॉन्ड से अपनी तरफ, एंड इट इज एज द रिजल्ट ऑफ योर रेजोनेंस ओनली. और इस तरह के इफेक्ट को आप बोलते हो माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट. तो बेसिकली माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट किस वजह से हो रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से. क्या हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने डबल बॉन्ड से एडजेसेंट पोजीशन पे आपने लगा दिया, तो होगा क्या, इट विल अट्रैक्ट द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ.
as a result of resonance, and it leads to the effect जिसे आप बोलते हो minus R, that is minus resonance, और minus M, that is your minus mesomeric effect. ओके सो एक और एग्जांपल लिया है इन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जहां पे इन्होंने आपके सिस्टम के साथ अटैच किया है साइनाइड ग्रुप को. Again, it is electron withdrawing. It will attract the pi bonded electron towards itself, resulting into the structure like this. Then we have taken the example of nitrobenzene over here. Nitro group is very much electron withdrawing in nature. I have already mentioned a series of more electron withdrawing and less electron withdrawing groups in the previous video of mine, that is of inductive effect. So that is why I am requesting time and again कि पहले जाके उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो में शिफ्ट करो, because all these topics are interrelated, right? They're interdependent on each other. So आपको एक चीज तो सुननी पड़ेगी दूसरे को समझने के लिए, right? So you can see the example of nitrobenzene over here. क्या होगा, ये pi electrons जो है, it will donate its electron toward this carbon nitrogen bond. Okay, because nitrogen is carrying positive charge, and nitrogen being electronegative will try to remove its electronegativity by attracting the electrons, pi electrons from this particular pi bond, right? इस pi bond से electron को वो अपने towards attract कर देगा, resulting in the reduction of this nitrogen's electronegativity. पूरी तरह से नहीं होगी, but कुछ तो होगी, right? Okay. Then अब क्या होगा, next would be यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, your nitrogen will be shifting its electron NO से, यहाँ से आपके जो pi bonded इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, it will get shifted to this particular oxygen, resulting into the structure like this. Okay, so जब आपके pi bond इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन गया, अब आपके फर्दर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं. यहाँ से ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे, राइट, एंड नाउ दिस पोजीशन विल बी कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस. ठीक है, और इसी तरह आपके पास बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. सो यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स, और इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेटर समझ आएगा आप लोगों को, राइट. सो दैट इज वन केस. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. अब वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थी, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएंगे आपके पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेसिकली. ठीक है, सो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसी तरह एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे आपके किसी कंपाउंड में, डबल बॉन्ड से एडजेसेंट पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा. फॉर एग्जांपल विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस बॉन्ड को, देन यहाँ से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं आपके CH2 ग्रुप के ऊपर, इट रिजल्ट इनटू द स्ट्रक्चर लाइक दिस. सेम इज हैपनिंग इन दिस टू केसेस आल्सो. तो आप एनिलीन का केस भी देख सकते हो. एनिलीन के केस में नाइट्रोजन इज ऑलरेडी कैरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट कैन शिफ्ट टू दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. और अगर यहाँ पे आपके पास बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो अल्टीमेटली कार्बन तो भाई टेट्रावेलेंट एटम है आपका, तो यहाँ पे तो पेंटावेलेंसी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, मेकिंग योर कार्बन टेट्रावेलेंट अगेन. ठीक है, वापस से आपका कार्बन यहाँ पे उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी. समझ आ रही है बात, क्या बोला मैंने, कि नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने लोन पेयर शिफ्ट करेगा इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में. अब कार्बन के ऊपर होनी चाहिए थी 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, लेकिन यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग शो कर रहा है वो 5 एटम की. तो इसलिए क्या होगा, सो एज टू मेक इट स्टेबल, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे, लाइक दैट. So इस तरह से there is occurring a transference of electron over here. So that is what you can see in this case. So there are some points you need to remember in this particular case. Let's just discuss all of them one by one. So there are some points to remember. Let's see first one, that is your if in case of certain molecules, अगर आपके दोनों inductive effect और resonance effect operate हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी compound है आपके पास, उस कंपाउंड में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है. अब बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी हो सकता है, प्लस आई माइनस आई. सिमिलरली रेजोनेंस भी कोई भी हो सकता है, प्लस आई माइनस प्लस आर माइनस आर. तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड समटाइम्स दे आर गोइंग टू एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, समटाइम्स वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होंगे, समटाइम्स दे आर अप्लाइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और जब आपके पास अदरवाइज केस होगा, व्हेन दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, तो आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे. ओके, सो आपके पास यहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया है, दैट इज द केस ऑफ योर विनाइल क्लोराइड. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, आपको जो आपने देखा होगा, अगर जिसने भी इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो देखी है, आप वहीं से समझ जाओगे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके हेलोजेंस हैं, दे हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर एज वेल एज पर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट. लेकिन अगर रेजोनेंस की बात करेंगे तो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है बच्चा. ठीक है, सो
आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने इस तरह से। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, यू कैन सी दैट क्लियरली दे आर अप्लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन शुड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्यों, एज पर द, but as per the inductive effect के अकॉर्डिंग क्लोरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना चाहिए, बट एज पर रेजोनेंस इफेक्ट वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो अब होगा क्या इस केस में, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ योर HCl टू सच काइंड ऑफ कंपाउंड लाइक विनाइल क्लोराइड, जो आपका H पॉजिटिव है वो आपका CH2 इस ग्रुप पे जाएगा, एंड जो क्लोरीन है आपका, इट गोज टू द कार्बन दैट कैरीज क्लोरीन टू गिव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्यों हुआ, so what was the reason behind that? What is the reason behind this particular thing to happen is your homework. That is what I need you to respond in the comment section below. I need to see that how much concept clarity you have about this particular topic. So I'll be stopping my video right here, right now, because let's see that how much you are understanding the topic, how much depth it is you are getting in it. So yeah, that's all about it. And without wasting any more time, I'll be stopping the video right here now. And I hope that you will be responding to this answer in the comment section below. So about the application portion of resonance effect, we'll be taking up in the next video that I'll upload tomorrow, most probably, along with the hyperconjugation effect. So that's all about it. And yeah. So I hope whatever we have studied today आपको समझ आया है, and if you have liked the video, kindly subscribe to it and like it, share it, comment and press the bell icon for latest updates. So yeah, that's all about it, and I hope you'll share it as much as possible, only if you liked it, right? So yeah, that's all about it. Thank you.